Welcome to today's episode of MSME Talks, where we are dedicated to showcase the incredible journeys and achievements of owners and individuals belonging to small and medium enterprises who go above and beyond in their daily lives to run their businesses. We believe that every MSME business owners are the unsung heroes and the heartbeat of our Indian economy. Namaste and welcome. This is Raj Mehta from Tanka Patra, your MSME business catalyst. Today, we have special guest Mr. Shailesh Mehta, who transformed his journey from distributing stationary items to becoming a pioneer in CO2 laser, fiber laser, CNC router, and digital printing technology. From humble beginnings to industry leader, Mr. Mehta's story is a testament to innovation, resilience, and vision. Join us as we explore the remarkable evolution of Mehta High-Tech Industries Limited with the man who made it all possible. Stay tuned for an inspiring conversation. Congratulations on your 30th anniversary of Mehta High-Tech Limited, which is formerly known as Mehta CAD/CAM Systems Private Limited. हम अपने व्यूअर्स को आपका बिजनेस एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन 2 to 3 minutes you are able to explain your whole business so that our viewers can have an idea of your own business? See, as far as the product is concerned, we are core manufacturer and we have 4 verticals. One, we manufacture different range of digital printers, which are used in signage, many other applications. And then we are also going to introduce the digital printer for textile garment industries. So digital printer is one segment. Another is CO2 lasers. CO2 lasers generally used to cut non-metallic product. So like wood, acrylic, paper. For cutting and engraving, we make different huge range of laser engraving, marking and cutting machines. Then fiber laser. Then the third vertical is fiber laser. Fiber laser is used for the metallic product. So we manufacture different range of fiber laser metal cutting machines, marking machines, welding machine, laser thinning machines. And fourth vertical is CNC routers. CNC routers are used to carve, cut wood, stone, aluminum, metal, so many things. So we make so many range of CNC routers. So these are our basic product line. So, did you have any initial experience of machine manufacturing? Or see, actually, after I completed my BA Mechanical, somehow we entered into imports of different equipments. So we were importing the same kind of machines from different parts of the world, Europe, Taiwan, China. One point of time, it occurs to me like, now we should make it this machine. So I would say around 2007, we had turned into manufacturing from very small manufacturing unit. And from then to today, one by one, we are developing all those equipments, technology in-house. So, as per our initial talks, you started with selling of stationery. There was not a stationery, actually drawing instruments. Yeah. So we used to sell German product, Rotary, Stadler, old people, maybe knowing architecture. So we were selling a drawing instruments particular time. तो आपने एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से लेकर आज बड़े बड़े मशीनों की बेचने की जर्नी में you started with one and now you are strength of how many people currently? We are right now 1,800 around, and it's going to be 2,500 maybe maximum within 6 months. We are expanding very fast. We have now 15, going to be 12 manufacturing facilities right now, and in this month, 3 more manufacturing facilities will start. So this is what. So जैसे CNC टेक्नोलॉजी है, लेज़र टेक्नोलॉजी है, डिजिटल प्रिंटर टेक्नोलॉजी है, वो पूरा एक ही रूफ में उसको मेंटेन करना, हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग? Because generally it is all a separate industry itself and there is a huge possibility in each of the product line because they have different applications.
तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं पूरा? नहीं, आपने बोला कि अंडर वन रूफ के अंदर में इतनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे मैनेज करते हो? पूरे प्रोडक्ट का कैसे मैनेज करते हैं? I would say the very good teamwork. Okay. I would say that the great people are working in Meta Group, and I just develop, decide the direction. सब लोग उसके अंदर में जुड़ जाते हैं और जो भी नक्की करते हैं उसको फिनिश करते हैं. ऐसे होता है. और जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाते हैं फिर वो उसका मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सर्विसिंग वो हम एक बार सेट कर देते हैं तो ऑटो मोड में फिर चलता रहता है. फिर हम लोग नई प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में लग जाते हैं. जैसे जनरली CNC, लेज़र और डिजिटल प्रिंटर में अगर बहुत ही शॉर्ट में या क्रिस्प में डिफरेंस समझाना हो तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दिस थ्री टेक्नोलॉजीज? सी डिजिटल प्रिंटर के अंदर में सी ऑल आर रन थ्रू कंप्यूटर. डिजिटल प्रिंटर के अंदर में जो भी आपका ग्राफिक्स है उसके हिसाब से प्रिंटेड में से इंक गिरती है मीडिया के ऊपर और वही ग्राफिक्स कोई भी साइज में, कलर्स में क्रिएट हो जाता है. दिस ऑल डिजिटल प्रिंटर्स. देन CNC राउटर्स के अंदर में टूल घूमता है और टूल वर्क इन दी मटीरियल मीडियाज और उससे जो भी आप ग्राफिक तैयार करते हो उसके हिसाब से वो डिज़ाइन उसके ऊपर तैयार हो जाती है. द सेम इन लेज़र में लेज़र बाहर आता है. तो यू नो व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस दिस टर्म्स वुड बी वेरी न्यू टू यू. मतलब आप पहले से तो जानते नहीं थे. तो ऐसा क्या आपकी लाइफ में आया कि आपने ये जो मशीनरीज है उसके उस वहाँ वैसे इंट्रोड्यूस, आप कहीं पे तो इनसे इंट्रोड्यूस हुए होंगे, देन यू वुड हैव डिसाइडेड कि नाउ यू वांट टू गो इनटू दिस बिजनेस. व्हाट वाज दैट वेरी फर्स्ट टाइम व्हिच मेड यू? यू नो जैसे कि इन 1993 अराउंड इफ आई वुड से पेन प्लॉटर की पेन्स आती थी, प्लॉटर पेन्स. Yes. जो जर्मनी की रोटरिंग कंपनी, स्टेटलर कंपनी और दूसरी वो में प्लॉटर पेन हम लोग बेचते थे. R&D जैसे इसरो के अंदर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर में वो बेचते बेचते वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि वाई वी शुड नॉट सेल प्लॉटर इटसेल्फ. तो उस टाइम में तो ये आपका इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट 1993. तो मैं यहाँ पे गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जाता था. वहाँ पे लाइब्रेरी थी, सब बड़े बड़े बुक्स थे, उसके अंदर में सब डेटाबेस था. तो उसमें हम लोग प्लॉटर कौन बनाता है वर्ल्ड के अंदर में. तो फिर उसके हिसाब से फिर मैं उसमें ईमेल भी नहीं था तो मैं उसके एड्रेस लेके फैक्स नंबर, वहाँ पर हमारे फैक्स बहुत चलते थे, तो फैक्स में लेटर बना के मैं सबको यूरोप, USA, ताइवान सब जगह पे प्लॉटर के पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चर को मैंने काफ़ी फैक्स करता था. और वन पॉइंट ऑफ टाइम USA से ताइवान की कंपनी का फ़ोन आया मेरे ऊपर कोई भी टाइम कि भी आपका ऐसा इंक्वायरी आया था वगैरह, और वो पेन प्लॉटर बनाते थे ताइवान की. तो मैंने उस समय इतने पैसे भी नहीं थे, फिर भी मुझे याद है कि करीब करीब 1,80,000 का, विच वॉज अ बिग अमाउंट दैट टाइम 1993, तो मैंने इम्पोर्ट कर लिया. मुझे पेन प्लॉटर आता था तब एक्साइटमेंट था, लगाया तब एक्साइटमेंट था, फैमिली मेम्बर को ले जाके दिखाता था. तो उस तरह से मेरा ये मशीनरी लाइन के अंदर में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ. फिर उसके कनेक्टेड जो प्रोडक्ट था, जो कस्टमर को ज़रूरत था, फिर पेन प्लॉटर के बाद में लेज़र टेक्नोलॉजी आई. लेज़र प्लॉटर भी बोल सकता है. पेन प्लॉटर में पेन ड्रॉ करता है, लेज़र के अंदर में लेज़र करता है. तो लेज़र वो लोग भी ग्रो हुए, उन्होंने भी जो नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट डेवलप किए तो वो वहाँ पे डेवलप लॉन्च करते. तो मैं भी यहाँ पे फिर इसको इंट्रोड्यूस करके मार्केटिंग करके यहाँ पे भी इतना शुरू किया. लेज़र आया तो बाद में CNC का ज़रूरत पैदा हुआ, वुड के ऊपर और मेटल के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर कटिंग, इंग्रेविंग करने का. तो फिर वो टाइप के इक्विपमेंट ढूंढने लगे और फिर वो इक्विपमेंट लाया. उसके बाद में साइनीज जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर में हमारे पेन प्लॉट, कटिंग प्लॉटर, लेज़र मशीन, CNC मशीन बहुत चलते थे. और उस टाइम के अंदर में डिजिटल प्रिंटर टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ साइन इंडस्ट्रीज के अंदर में. तो 2000 के अंदर में मैंने चाइना का प्रिंटर लॉन्च किया.
ये सब का किया, सब प्रोडक्ट बेचते थे। तो जैसे आप ऑलरेडी इतना इंपोर्ट कर रहे थे, तो व्हाट मेड यू स्विच टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया? बिकॉज जर्नी फ्रॉम इम्पोर्टर टू मैन्युफैक्चर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग का तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं पहले। तो हाउ डिड यू स्विच? क्या आपको डर नहीं लगा कि अगर लॉस हो गया तो, और इफ यू फेल्ड? अगर आपके क्वेश्चन में ऐड करो, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग की जो कोई इंडिया में करता ही नहीं था, वो भी वो टाइम था। अगर कोई दूसरा करता है तो इजीली वी कैन गेट कॉन्फिडेंट टू मेक इट, बट उस टाइम में तो कोई सोच भी, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी सोच भी नहीं सकता था, ऐसा तो था। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो इंटरनेशनल कंपनीज है ना, हम लोग तो एकदम दिल लगा के दबा के मेहनत करते हैं उसकी ब्रांड को पॉपुलर करके अपना सेल्स बढ़ाने का। फिर इन लोगों को क्या है कि वो लोग अपने से पूरा ब्रांड को पॉपुलर करते, फिर दूसरे को देना शुरू करते, जो पहले मना करते हैं, फिर दे चेंज द वर्ड्स। और तो जब उन्होंने दूसरे को भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, वो टाइम मेरे लिए थोड़ा मेंटली डिस्टर्बिंग था। और मेरे मन के अंदर में ये बात आई, नो, ऐसा तो नहीं चलेगा। अब ये सब एक एक मशीन मैं इंडिया में बनाऊंगा। मेरे वाइब्रेंट गुजरात के अंदर में मेरा इंटरव्यू किसी ने लिया, मैं कोई अंदर विजिट करके आ रहा था, और वो माहौल भी ऐसा बढ़िया था, और उसके अंदर में मेरा माइंडसेट भी ये सफरिंग था, ये फॉरेन की कंपनियों का, इस टाइप का। तो मेरे मन से ये बात निकली कि नाउ आई विल मेक ऑल दोस इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और वो मेरे मन के अंदर में बहुत अच्छा बैठा। दूसरे दिन सुबह आके मैंने मेरा आइडिया मेरे लोगों से शेयर किया, और मैंने हर एक को कुछ कुछ काम सौंप के मैंने उस दिन से एक इस डायरेक्शन के अंदर में मैंने स्टेपिंग किया, और पूछते पूछते, काम करते करते, सर्च करते 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 फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि लाइफ के अंदर में मैंने अपने फायदे के लिए किसी का यूज ना करना, यूज, ये मेरे मन में बात थी। क्योंकि जिस तरह से मैं सफल हुआ था, जिस तरह से फॉरेन कंपनियों ने कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए मेरा यूज किया, मेरे से प्रोडक्ट को डेवलप करवाया, फिर दूसरे को दिया, तो ये कितना पेनफुल होता है कोई व्यक्ति के लिए, वो मेरे मन में भी आ गया। तो आई डोंट वांट इट टू गेट इट हैपन टू एनीवन थ्रू मी। मैं ऐसा नहीं चाहता। राइट, या। तो मैंने भी ऐसा नहीं किया कि दूसरे से रेडीमेड लोग लाए, उसके एक्सपर्टाइज लोग, और कंपनी के अंदर में हाई सैलरी में उठा के अपने कंपनी में लाके उसका यूज किया। नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं। मैंने मेरे जो लोग थे उन लोगों को 5-5, 6-6, 7-7 लोगों को फॉरेन ले जाके, फॉरेन के लोगों को यहाँ बुला के मैंने उनसे सीख के अपने ही लोगों को तैयार करके मैंने पूरी कंपनी क्रिएट की है, विच इज आई रियली फील हैप्पी अबाउट मी टू थिंक दिस वे एंड टू अप्लाई दिस वे. It has really helped me to grow. So all your senior technical staff और सर्विस इंजीनियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप इंपोर्ट कर रहे थे, वो आज कहीं ना कहीं आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें वो लोग पूरा हैंडल करते हैं. इज इट ट्रू? Yeah, of course. See, yeah. तो आपने सबसे पहले कौन सी प्रोडक्ट से चालू किया था? CNC routers. Yeah. I thought that I can do it. ऐसा मेरे मन में आया तो मैंने CNC राउटर से शुरू किया था, और साइमल्टेनियसली मैंने CO2 लेजर से भी शुरू कर दिया था. अच्छा. उस टाइम के अंदर. तो जैसे आपको याद है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर कैसे हुआ था, या फर्स्ट ऑर्डर लेने के लिए, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर लेने के लिए आपने कितना मेहनत किया था, या क्या क्या बोला होगा कस्टमर को? मैं करेक्ट करना चाहूँगा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट ऑर्डर का बहुत बड़ा बात नहीं है, पर जब मैंने ये प्लॉटर जो इंपोर्ट किया था,
मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट प्लॉटर आया, मैंने डिस्प्ले किया, फैमिली को बताया, उसको वो एक अलग थोड़ा सा जो मार्केट में ट्रेंड था उससे थोड़ा अलग था। ड्रम रोलर चलते थे बर्फ ये कौन से साल की बात है? 93। 93। तो उस टाइम के अंदर में मुझे मालूम है कि वो एक मशीन बेचने के लिए मुझे 1 साल, 2.25 साल लगे थे। 2.25 साल के बाद इंस्ट्रूमेंटल बुच करके थे, इन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया, और जो मशीन मेरे डेमो में था, फर्स्ट मशीन, वही मशीन मैंने बेचा। दूसरी मशीन लाने का तो पैसा नहीं था, तो पहले डेमो का ही मशीन उनको दिया। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर तो क्या कि ट्रेडिंग करते थे, तो ट्रेडिंग के अंदर भी तो ऑर्डर आते थे जाते थे, फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट बन गया, तो वो भी मेरे को इजीली सप्लाई करना हो गया। उसमें मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। पर जब आपने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया होगा, जब वो कस्टमर के पास गया, तो डिड इट रन स्मूथली और यू हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स? डू यू रिमेंबर एट एनी काइंड ऑफ ब्रेकडाउन व्हिच हैपेंड वेयर यू थॉट यार, और यू थॉट दैट it does not turn out to be a mistake of manufacturing? सी, मुझे वो पर्टिकुलरली पॉइंट तो ध्यान में नहीं आ रहा है कि मेरे फर्स्ट मशीन के अंदर में प्रॉब्लम आया है, नहीं टेस्ट शेकन में ना कुछ भी, नो ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है। पर उस दिन से आज तक प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, और हम लोग उसको सॉल्यूशन करने के लिए हार्ड वर्क करते ही रहते हैं, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो मेरे में अब कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया है लाइफ के अंदर में। मैं सबको कहना भी चाहूँगा कि, और मेरे पापा भी कहते थे कि लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, दैट्स इट। तो कोई सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं रहा। तो जैसे मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आप अभी जो टीम है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से आप सर्विस सपोर्ट देते हैं, किस तरीके से आप इतने लोगों को संभालते हैं? हाउ डू यू मैनेज? व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी राइट नाउ? मैंने जैसे आपको बताया कि आई डोंट वांट एनीवन टू गेट यूज्ड बाय मेहता ग्रुप। ये बात मेरे मन में थी, और वो अच्छी बात थी, अच्छे संस्कार वाली बात थी, जो मैंने पकड़ के रखा यहाँ तक पहुँचा। तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि उस टाइम के अंदर में रिमेंबर मे बी 2000 मेरे को पूरे इंडिया में मशीनें बेचने थे। उस टाइम के अंदर में भी मेरे पास चॉइस था, डीलर नेटवर्क बनाओ या खुद का ऑफिस बनाओ। उस टाइम में भी कुछ बातें ऐसी कई कंपनियों की मैं सुनता था कि इसने कोई स्टेट के अंदर में, सिटी के अंदर में मार्केट बनाने के लिए पहले डीलर बनाया, डीलर ने खूब मेहनत किया, फिर वो डायरेक्ट एंटर हो जाते हैं, कंपनी डायरेक्ट आ जाती है। ये भी मैं उस टाइम में कुछ बातें हुई तो मैंने सुना, तो मैं आई डोंट वांट टू डू दिस इज नॉट आई नहीं, मैं जो भी बनूंगा वो अपने दम पे ही करूंगा, मुझे किसी का यूज करना ही नहीं है। और वो फिर मुझे सही भी लगा कि जितनी अपने में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, इतना बढ़ोगे तो अच्छी बात, दैट विल बी सस्टेन फॉर लॉन्गर, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। तो मैंने ब्रांच ऑफिसेस शुरू की, विच इज ऑलवेज टू बी रिस्की। ब्रांच ऑफिस करते उसी दिन से खर्चा शुरू हो जाता है। डीलर में तो वो ऑर्डर आता है तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट ले जाता है, पर हम सेफ होते हैं उसके अंदर। पर मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया, और भगवान की दया से अब जब मैं यहाँ बैठ के इस मोमेंट में, जब पास्ट में जाके देखता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा विजन था। मेरे को ऐसा था कि मैं हूँ या ना हूँ, मेरी कंपनी चलती रहनी चाहिए। तो मैंने उस दिन से अभी तक के जो भी वही सब एक्शन लिए, एक एस्टैब्लिशमेंट करने के, नहीं कि सिर्फ पैसा कमा के मजे करने का के हिसाब से मैंने लाइफ को या बिजनेस को नहीं देखा है। मेरे को बस एस्टैब्लिशमेंट करते 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 तो इस तरह से हमारे खुद के 22 ऑफिस है इंडिया के अंदर में, डायरेक्ट सेल्स सर्विस सपोर्ट, कोई जगह पे 15 आदमी, 25 आदमी, 20 आदमी, इस तरह से सब लोग काम करते हैं। और अभी तो हमने बांग्लादेश, नेपाल में भी डायरेक्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया, हमारे लोग वहाँ पे हैं। पर ये दोनों को छोड़ के पूरे वर्ल्ड के अंदर में हम डीलर नेटवर्क बनाना चाहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका कोई एक ऐसा, जैसे हर एक की जर्नी में उतार चढ़ाव आते हो, क्या ऐसा कोई भी ब्रेकडाउन आपकी लाइफ में आया हो
जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई हो एंड देन यू हैव अगेन कम ओवर इट? हाँ, वो था क्या कि ट्रेडिंग में से जब मैन्युफैक्चरिंग में आए, राइट. और थोड़ा सा आदमी को जब सक्सेस मिलता है ना, तो वो थोड़ा हवा में उड़ने लगता है. आई मीन टू से दैट वो मैंने स्पीड बहुत बढ़ा दी थी, हाई स्पीड के अंदर मैं एक्सपेंशन करना भगवान से. पर 2012-13 वाज माय फर्स्ट पीरियड जिसके अंदर में बहुत सारे चेंजेस आए थे. डॉलर का प्राइस 15-20 दिन के अंदर में ही 55 से 69 हो गया था. बायर्स क्रेडिट में बहुत सारे इंपोर्ट करते थे हम लोग, तो जो 55 रुपये के हिसाब से, 55 रुपीज़ के हिसाब से, डॉलर के प्राइसिंग के हिसाब से हम जो मशीनें बेच दिए, उसका जब पेमेंट आया तब 69 में किए. बहुत बड़ा फैक्ट्री भी बनाया था. तो उस टाइम में फिनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत आए. कुछ रिसेशन का पीरियड चल रहा था. राइट. उस टाइम के अंदर में उस समय मैं बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मैन पावर खर्चे, और उसी टाइम में थोड़ा सा सेल बहुत डाउन हुआ. तो जैसे मालूम है ना कि तकलीफ आती है तो हर साइड दिशा से आती है. उस टाइम आया और वो मेरा 1 साल थोड़ा वर्स्ट गया लाइफ का. छोटे मोटे तो प्रॉब्लम आते ही रहे, जो आज भी आते रहते. पर अगर बिग ब्रेकडाउन की बात करते हो तो उस टाइम के अंदर में मैंने तो चलो बात तो we shifted to small house. I shifted from big office to small office to get ready to face any situation. कई बार बड़ा बन के आप बड़ी सिचुएशन को, खराब सिचुएशन को फेस नहीं कर पा सकते. छोटे बन के आप फेस कर पाते हो. ये अलग सब्जेक्ट में मैं बात कर सकता हूँ. आप छोटे बन जाते हो तो मे बी इजी टू फेस. It helps you to face, I would say that. तो उस टाइम के अंदर मैं छोटे घर में जाके बैठ गया था, और वो 6-8 महीना मस्ती से निकल गए. भगवान ने वापस साथ दिया, और वापस मैं एकदम उस समय थोड़ा डिप्रेशन में था. अभी मैं याद आ रहा है. फिर वापस मेहनत करते करते वापस. आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया कह सकते हैं, मेक इन इंडिया कह सकते हैं, यू आर डूइंग द रियल मेक इन इंडिया. तो आपके जो मशीन के पार्ट्स हैं वगैरह हैं, वो भी आप बाहर लोगों को, वेंडर्स को अपना काम देते होंगे. तो ऐसे कितने टाइप के आपके वेंडर्स होंगे और कितने सप्लायर्स होंगे, कोई अप्रोक्सीमेट? नहीं, इंडिया के अंदर में या फॉरेन से? इंडिया से योर ओन वेंडर्स. सी, जैसे आप लोगों को मालूम है कि कोई एक इंडस्ट्रीज कोई भी एरिया में बढ़ती है तो उसके आजू बाजू भी सब कुछ बढ़ जाता है. शायद कई छोटी छोटी कंपनियां, जैसे हम लोग कठवाड़ा में हैं तो नज़दीक में ऑटो है, रखियाल, मटवा, जो सब इंडस्ट्री एरिया है, ऐसी इतनी कई कंपनियां जो हमारा ही काम करती है. ऑफकोर्स मैंने इन हाउस फैसिलिटी बहुत डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, वो भी चालू है, पर साथ में बिजनेस भी बढ़ता है तो हमें प्रोडक्शन को कोप अप करने, रिक्वायरमेंट को कोप अप करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें काम बाहर देना ही पड़ता है. आपको कभी डर नहीं लगा, इतने सारे एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम करते हैं, या इतने सारे लोग आपके यहाँ काम करते हैं, तो उनको मैनेज करने का टेंशन बहुत अलग टाइप का है? मैं एक बात बताऊं, डर तो मेरे अंदर में, जो को दूसरा का तो मालूम नहीं है, डर तो हमेशा मन के अंदर में रहता ही है, बैठा ही रहता है. पर आई डोंट स्टॉप बाय दैट. मेरे पास वो कुछ ऐसी सोच है कि मैं डर को एनालिसिस करता हूँ, कितने लेवल का डर है, क्या सही है कि माइंड मेड डर है. और आई वुड से, और मैं सबको कहना चाहूँगा कि जो भी अपने मन के अंदर में डर है ना, वो रियल डर, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करोगे तो 95% वो गलत डर होता है, वो सही डर होता ही नहीं. और मैं तो ये कहता हूँ कि डर जो है ना, वो भगवान ने हर ह्यूमन बीइंग को दिया है. तो डर होना कोई रॉन्ग बात नहीं है. डर के कारण अगर आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते हो, देन इट्स नॉट सो ग्रेट. डर है तो इट्स ओके यार, डर तो करेंगे, कुछ भी नई चीज पहली बार करेंगे तो डर लगेगा. राइट. क्या बड़ी बात है. और हमें तो लाइफ में नया नया तो हर टाइम में करना पड़ता है, हर रोज सुबह नहीं होती.
तो डर को साथ में लेते लेते फिर भी डर को थोड़ा, और जब काम में आप बिजी हो जाते हो तो डर पिछली सीट पे चला जाता है. Right. और आई डोंट स्टॉप बाय डर. मैं डर से बैठ नहीं जाता हूँ. आपकी जो प्रोडक्ट्स है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, सो हाउ इज योर रिव्यू अबाउट इट? आर यू एबल टू मैच द क्वालिटी एज अब्रॉड? आर योर मशीन्स क्वालिटी अप टू द पार लेवल एज ऑफ द इम्पोर्टेड मशीन्स? Yes, many times. See, mainly तो हमारा कंपटीशन चाइनीज प्रोडक्ट के साथ है. इंडिया Right. इज अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट मार्केट. यूरोप यूएसए जैसा नहीं है. यहाँ पे जो सस्ता है वहाँ पे लोग जल्दी से दौड़ जाते हैं. तो यहाँ पे अपना चाइना का डोमिनेंस है पूरे इंडिया के अंदर में, और चाइना में भी बहुत कंपटीशन है इंटरनल प्राइसिंग का. तो अभी क्या हुआ है कि चाइना से जो मशीन्स आते हैं, और यहाँ के लोग भी जब मशीन लाते हैं चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में, तो वो लोग सस्ते में सस्ता मशीन लाने की कोशिश करते हैं, सो दैट वो लोग अपना एक इनफ प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच सके, ज़्यादा कमा सके. सस्ता और सस्ता में लाने में. और चाइना के अंदर में क्या हुआ है कि वहाँ पे भी 2-3 लेवल की कंपनियाँ. एक टॉप कंपनी है जो टॉप प्रोडक्ट ही बनाती है, जो सस्ती. तो अब वो लोग क्या है कि जो की कंपोनेंट यूज करते हैं वो सस्ते में सस्ते यूज करते जा रहे हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को नीचे लाने के लिए. राइट. और यहाँ पे हम लोग जीत जाते हैं क्योंकि वी डोंट डू दैट. हम लोग जो ब्रांडेड, वर्ल्ड की जो जेन्युइन ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसी को यूज करके हम मशीन बनाते हैं. तो कई टाइम में हमारा मशीन ट्रबल फ्री होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है. दूसरा जो हमारा लोकलाइज है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस सपोर्ट. वी आर वेरी गुड इन सर्विस सपोर्ट. तो हमारे कंटिन्यूसली हम इंजीनियर को नए नए अपॉइंट करते ही जाते हैं, उसको ट्रेनिंग करके फील्ड में उतारते हैं. तो अगर आप कस्टमर को जब सर्विस इमीडिएटली मिल जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं दिखता है. राइट. आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो, जैसे तो हम जानते हैं कि चाइना पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता है और दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड. सो आपको भी चाइना से इतनी कंपटीशन होती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर यू विल बी एबल टू मैच द चाइना प्राइजेस? नॉट फ्यूचर, कई जगह पे हम लोग मैच करते हैं. You mean you are at par with China in terms of prices? टर्म्स ऑफ प्राइस. So, क्योंकि अब हम भी मास प्रोडक्शन में आ चुके हैं ऑलरेडी हर प्रोडक्ट के. दैट्स व्हाई आई सेड वी हैव 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 3 more is going to start. तो मास प्रोडक्शन के अंदर में भी एज यू नो हमारे बीच जो परचेसिंग है वो अच्छे प्राइस में होती होगी, ये वगैरह वगैरह. अभी हमारे मशीन्स में कितनी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं और कितनी चीज़ें लोकली हम बनाते हैं? हर एक इक्विपमेंट के अंदर में इसका रेशियो अलग अलग है, क्योंकि अब हम बड़ी साइज की कंपनी हो चुकी है, तो हम हो सके इतना इन हाउस डेवलपमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं. नहीं कर पाते तो इंडिया से सोर्सिंग करने की कोशिश करते हैं. और हमारा अल्टीमेट एम है कि हम टाइम टू टाइम चाइना के ऊपर जो हमारे पार्ट्स की डिपेंडेंसी है वो हम टाइम टू टाइम कम करते जाए. ये हमारा प्रयास है और हम उसमें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं. सो आपके यहाँ पे भी R&D वगैरह सब चलता ही होगा. सो हाउ डज योर डे लुक लाइक मिस्टर मेहता? दे लुक लाइक मीन्स आपका पूरा दिन किस तरीके से जाता है? यू हैव ऑलरेडी टीम ऑफ से ओवर 1500 पीपल. तो जैसे हम आपके साथ, आपका पूरा दिन का क्या शेड्यूल रहता होगा? फॉरेन कंपनियों के साथ का जो एक कम्युनिकेशन है वो मेरे थ्रू होता है, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी रहता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे कई नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन आती है. और मैं ज़्यादा में ज़्यादा टाइम नई नई डेवलपमेंट के लिए मेरे R&D की टीम के साथ मैं स्पेंड करता हूँ. दूसरा, कोई भी कारण से
शुरू से मैं डायरेक्ट कस्टमर के कॉन्टेक्ट्स में रहा हूँ, हजारों में है, सबके साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो कई बार कस्टमर भी, उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभार डिले होता है, तो वो मेरे को भी फ़ोन करते हैं और मैं सबको अच्छी तरह से जवाब देता हूँ और उसको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत काम करता हूँ। तो थोड़ा टाइम मेरा उसमें भी चला जाता है। Okay, in next 10 years, what is the future technology which you would like to explore in your business? As I told you, we are into 4 verticals. CNC टेक्नोलॉजी में है, लेजर टेक्नोलॉजी में है, डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में है। तो अभी भी of course it has grown a lot in India market, but still lot of scope to grow in India market. तो जो ट्रेडिशनल कई फील्ड के अंदर में, एप्लीकेशन के अंदर में अभी भी कई बार ट्रेडिशनल मेथड चल रही है, तो आने वाले 10 साल के अंदर में मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वगैरह वो डिजिटलाइज होगी। और हम लोग भी कमिटेड हैं, टाइम टू टाइम जो भी टेक्नोलॉजी नई डेवलप होती है या कोई होते, तो राइट टाइम के अंदर में हम भी कुछ डेवलप करके इंडिया के अंदर में हम ला के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकें। तो अभी 10 साल के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी होगी वो तो कहना मुश्किल है, बट आई वुड से दैट ऑल दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो आपने अचीव किया हो इन द ड्यूरेशन ऑफ योर 30 years which you would like to share with us? खैर इतने सारे इक्विपमेंट्स हमने बनाए, हर टाइम के अंदर में एक्साइटमेंट रहा, कई टाइम के अंदर में अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन रहा, सब कुछ रहा। पर अभी हमने आज से 3-4 महीने पहले इन मार्च 2024 में हमने चाइना में स्टॉल रखा था। ओह वाओ, कई मशीन गए थे, 15 लोग हम यहाँ से गए थे और अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा पूरे वर्ल्ड से, चाइना से। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जो पूरा वर्ल्ड, आपको मालूम है इंडिया के अंदर भी हमारी टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर में हमारी कंपटीशन चाइनीज़ के साथ ही है। राइट। और हमने चाइना में स्टॉल रखा था, कई रीज़न पर्पस थे उसके। इंडिया के लोग आके भी मेहता का स्टॉल चाइना में देख के बहुत खुश हुए, बहुत लोगों ने एक्नॉलेज किया, मज़ा आया, वो मुझे अच्छा भी लगा। और तो जो पहले आप चाइना से मशीन मंगाते थे, आज वही मशीन्स आप खुद बना के वापस चाइना में ही एग्जिबिट करके वहीं पे बेचने में और पूरे वर्ल्ड में बेचने का इंटेंशन, हमने तो बिजनेसमैन है, राइट। मेरे को नहीं तो कोई जहाँ पे अच्छा बिजनेस मिले वहाँ बिजनेस करने का है। तो अभी मेरे को चाइना में बेचने के बदले अभी तो पूरा वर्ल्ड ओपन है हमारे लिए, तो पूरे वर्ल्ड में बेचने का मेरे को बहुत ही अभी माइंड के अंदर में। सो राइट नाउ इन व्हाट कंट्रीज आर यू एक्सपोर्टिंग? Gulf countries is a good market, African countries are very good market, and now the time is for Europe and USA. हमारी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका अपीयरेंस, परफॉर्मेंस, ट्रबल फ्री भी अच्छा होता जा रहा है। तो नाउ यूएसए और यूरोप ये नेक्स्ट हमारा टारगेट है। आप जो नए स्टार्टअप फाउंडर्स हैं या जो दूसरे एमएसएमई वाले एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं बहुत अलग सोचता हूँ, जैसे कि मेरे भी कई एस्पिरेशन हैं, अचीव करना है, पर मैं बहुत अलग तरीके से सोचता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मेरे को काम में बहुत मज़ा आती है, लगा रहता हूँ। पर मेरे मन में ये भी है कि हुआ तो भी ठीक, अचीव हुआ, और नहीं हुआ तो भी ठीक, इट्स ओके। तो कहीं ना कहीं यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि गिव योर बेस्ट, एंजॉय योर वर्क, दैट्स इट। जैसे गीता में भी कहा गया है कि काम किए जा, फल की आशा मत रख, वो सेम हो गया है ये। जस्ट कीप डूइंग इट, भगवान ने चाहा, नसीब में होगा तो अपने आप डेवलप हो जाएगा।
दैट्स लाइफ इज जर्नी, जर्नी को अच्छी बनाओ. Right. How does your business contribute to the society, or any CSR activity which you do, which you would like to say? एक आई हॉस्पिटल चल रही है Right. हमारी और एक दूसरे के साथ में मिलके, वो एक अच्छा चल रहा है. आपने एक कोलैबोरेशन किया है जहाँ पे वो अच्छी चल रहा है. छोटे मोटे तो ऐसे होता रहता है, कहने में मज़ा नहीं आती है, बट आई एम नॉट ग्रेट इन टू इट. मैंने क्या मालूम, कहीं ना कहीं मुझे ये हमेशा भी रहा है कि मैं पूरी दुनिया के लोगों का नाम कमाने के लिए अच्छा करने जाऊं, तो उसके पहले सबसे पहले हक तो मेरे कंपनी के जो 1700 लोग काम करता है उनका है. मैं उनका पहले ध्यान रखूं, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उनको भी अच्छी लाइफस्टाइल दे पाया तो भी मेरी लाइफ धन्य है. राइट. मैं कोई बड़ी बड़ी नहीं सोचता हूँ. You understand? राइट. तो कैसे आप अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी कैसे उनकी लाइफ बेटर करने का कोई प्रोग्राम चलाते हैं या फिर कोई एक्टिविटी करते हैं? उसमें छोटी मोटी तो कई बातें होती होगी, लेकिन मैं जो सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं हमारे कंपनी के लोगों को वर्क प्रोफाइल बदलता हूँ, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, विच गिव देम अ चांस टू ग्रो, और उसके साथ में सैलरी भी बढ़ती जाती है. तो सबका ग्रोथ हुआ फिनेंशियली, पोजीशन वाइज. राइट. तो इट्स गुड. मैंने वर्कर्स को भी बड़ी सीट के ऊपर ले गया हूँ. राइट. तो जिन लोगों का कमिटमेंट, हार्ड वर्किंग, फोकस्ड होता है, तो मैं उनको नया नया काम देता हूँ. तो मैं इस टाइप का वर्क करता हूँ. What is the most unique point about your company? आपकी कंपनी एक आज मैन्युफैक्चरिंग जायंट है पूरे इंडिया में, एंड यू आर वन ऑफ द लीडर इन योर ओन इंडस्ट्री. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट दैट वाज द यूनिक पॉइंट अबाउट योर कंपनी जो आपको एक बॉटम लेवल से लेके आज एक टॉप पोजीशन में डालती है? कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लगे ही रहे नए नए डेवलपमेंट के अंदर में, लगे ही रहते हैं कस्टमर की सर्विस सपोर्ट के अंदर, लगे ही रहते हैं नई नई टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस क्रिएट करने के अंदर में. तो कंसिस्टेंसी एंड आई वुड से हार्ड तो नहीं कहते, लेकिन एक समझने के लिए हार्ड वर्किंग भी रहा है हम सब लोगों का. What is the thing which you would like to change in your company? जो अभी हो रही है और आप ऐसा चाहते हैं कि मैं इसको चेंज करूं. या वो एक तो आई एम नॉट अ गुड टाइम मैनेजर, थोड़ा सा मेरा ये है, और मेरा इन्वॉल्वमेंट कई एरिया में है जो मैं कम करके ऑटोमाइज कर दूं या रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और कुछ बातें मेरे तक आए नहीं और ऑटोमेटिक चलता रहे, और मैं मेरे काम में ही ज़्यादा फोकस करूं, वो मैं ज़्यादा चाहता हूँ. So what is the retention rate in your company? क्योंकि आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपको तो वन ऑफ द मेजर चैलेंज ये फेस हो रहा होगा कि पीपल स्विच नाउ जॉब्स वेरी क्विकली. सो तो आप अपने लोगों को रिटेन करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं? मैं सच बताऊं, मैं स्पेशली लोगों को रिटेन करने के लिए कुछ नहीं करता. नो, आई डोंट वांट टू डू दैट. मैं वो कोई जात जात की एक्टिविटीज सिर्फ रिटेन के लिए करना चाहता हूँ. इट्स नॉट आई एम. मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी कंपनी का ग्रोथ या एक्सपेंशन मैं इतनी स्पीड पे करता रहूं ताकि सब लोग ग्रो होते रहे, और वो हमारी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी जाने में उसको फायदा ना दिखे. तो मैं मेरी कंपनी को हमेशा ग्रोथ के पाथ पे रखना चाहता हूँ, वेयर एवरीबडी कैन सी दिस कंपनी इज ग्रोइंग. यहाँ पे ज्यादा फायदा रहेगा आज और आने वाले वक्त के अंदर में. मैं रिटेंशन के लिए कुछ नहीं करता हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू वर्क टू ग्रो द कंपनी, एंड अल्टीमेटली वी शुड ग्रो. उसके लिए वर्क करता हूँ.
तो जैसे आपके भी पुराने एम्प्लॉयज़ रहे होंगे, सो हाउ मेनी ऑफ स्टिल आर देम विथ यू? It's hundreds. Who is the, That's my power. yes, who would be the oldest employee in your company and since how many years he is there? 27-28 साल से मुझे मालूम है, एक 27-28 साल पुराना 2-3 युग तो मुझे अभी ध्यान में है. Oh, nice. Down the line of 10 years, where do you see your company? World class international company. What is your dream? आपका ड्रीम क्या है? मैं असल में तो मेरा कोई ड्रीम नहीं है. मैं क्या चाहता हूँ मैं कह सकता हूँ. मेरा कोई ड्रीम नहीं है. मैंने अभी भी पहले बोला, मेरे को कोई जगह पे पहुंचना नहीं है. मैं चाहता हूँ कि टिल लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ मैं काम करता रहूँ, काम के मजे लेता रहूँ और लाइफ के मजे लेते रहूँ. और मजे लेने के लिए आपको एक नया नया काम करते ही रहना पड़ेगा. मैं एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे बिजनेस को लेते जाना चाहता हूँ. So thank you so much friends for watching whole video. Please comment below what did you learn from this amazing conversation with Mr. Mehta. If you are part of MSME industry in any form, you can subscribe to our channel. You will get weekly new podcasts and value added videos which will help you to grow in your business. Thank you so much. See you all in my next video.